Good morning, my dear students. I am Bharti Kathuria Sehgal from the SD Vidya School, Ambala Kent. We are continuing the chapter number 3, Human Reproduction. Today, we are going to start with the new topic, Female Reproductive System. Now, before starting with the topic, Female Reproductive System, you must understand what female reproductive system includes. So, the female reproductive system includes a pair of ovaries, a pair of oviduct or what we call as fallopian tube, a uterus, a cervix, a vagina, and external genitalia. So, ovaries, oviduct, uterus, cervix, vagina are all the parts of the internal genitalia. So, you must understand, so all the parts of the female reproductive system present inside the abdominal cavity. So, which includes the oviducts, the uterus, cervix, vagina, and the ovaries are included in the internal genitalia, and external genitalia is the pathway through which the sperm will make entry into the female reproductive system. There are two oviducts, one uterus and a vagina, which are called as the accessory ducts. There are a pair of mammary glands also, which are included in the reproductive system, although they are not directly involved in the process of reproduction, but they provide nourishment to the offspring. Now, all parts are integrated structurally and functionally to support the process of ovulation, fertilization, pregnancy, birth and childcare. So कहीं ना कहीं ये सारे आपस में मिलजुल कर क्या कर रहे हैं? सबसे पहले तो ovulation का process मतलब production of the ovum, and then the fertilization or which will lead to pregnancy, and then after the completion of the gestation period will lead to the childbirth, and then will be the child care. Now let's talk about the next topic. Now this is the sectional view through the pelvis, which is the figure 3.3 part A of the NCERT. So here we can see the internal genitalia as well as the external genitalia. So the internal genitalia, which will include the uterus, as you can see, which is called the mother's womb, the urinary bladder, the pubic symphysis, the uterus, the urethra, the clitoris, labium minora, labium majora, vaginal orifice. So all these parts that you can see here, the clitoris, labium minora, labium majora and vaginal orifice are known as the external genitalia, while the ones located inside the abdominal cavity, that is the uterus, and the other parts included are called as the internal genitalia. Now let's talk about the female reproductive system in detail. First of all, we are going to talk about the internal genitalia. So the internal genitalia, as I already told you, includes the pair of ovaries, as you can see, which are located on either side of the abdominal cavity. So along with this, the other part is the fallopian tube, or what we call as the oviduct, the uterus that you can see here, right? And then the cervix, which opens into the cervical canal, and the vagina. This all is called as the internal genitalia. If you are asked to draw the diagram of the female reproductive system, then also this is what we actually call as the female reproductive system. The internal genitalia is what you have to draw. So now we'll be talking about the different parts of the female reproductive system in detail. So let's talk about, first of all, about the primary sex organs, or what we call as the female gonads, which are the ovaries. Now ovaries are called as the primary sex organs. Why are they called the primary sex organs? They are called the primary sex organs because these are the organs which produce ova, which is the female gamete, and will undergo fertilization for the development of the child. So that's the primary sex organ. Along with this, ovary also helps in the production of hormones. Two hormones you already know that you have done in class 10th also, which are estrogen and progesterone. Now here we'll also be talking about the two other hormones which are released by the ovary, that are relaxin and inhibin. About inhibin, we have discussed in the previous video also that inhibin is the one which inhibits the formation of the FSH. FSH is follicle stimulating hormone. So follicle stimulating hormone को inhibit करता है inhibin, and inhibin is released again by ovary.
सो ओवरी के बारे में अब हमने डिस्कस किया, इसका मेन फंक्शन क्या है। अब हम डिस्कस करते हैं कि इनका स्ट्रक्चर कैसा है। सो पेयर, जैसे हमने भी बात किया कि पेयर्ड है और इनमें टू मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती हैं ओवरी में। जो बाहर वाली है दैट इज कॉल्ड एज ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया इज मेड अप ऑफ द फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, और इसका मेन काम जो ऑब्वियसली बाहर वाली लेयर है उसका काम है प्रोटेक्शन देना, स्ट्रेंथ देना टू द ओवरी। और इसके साथ साथ ही ये क्या कर रही है, ये एक तरह का ओवरी को कवर कर रही है। इसके बाद अंदर वाली जो लेयर है दैट्स कॉल्ड एज द जर्मिनल एपिथेलियम, जो कि बनी है क्यूबॉइडल सेल्स की। और यहाँ इसके साथ ही अंदर की तरफ देखिए, बाहर की तरफ की दो लेयर्स की हमने बात की, सबसे बाहर वाली ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, उसके अंदर प्रेजेंट है जर्मिनल एपिथेलियम, और उसके अंदर जो पार्ट है दैट्स कॉल्ड एज द, दिस इज कॉल्ड स्ट्रोमा। नाउ दिस स्ट्रोमा, ये जो स्ट्रोमा पार्ट है इसको फर्दर हम डिवाइड करते हैं इनटू टू जोन्स। ये दो जोन्स जो है इन्हें हम कहते हैं पेरिफेरल कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला। ये चीज आपकी एनसीईआरटी में बहुत ही क्लियरली लिखी हुई है कि अंदर का जो पार्ट है उसे हम दो जोन्स में डिवाइड कर देते हैं। बाहर वाली जोन है पेरिफेरल कॉर्टेक्स और अंदर है इनर मेडुला। अब जो कॉर्टेक्स रीजन है, कॉर्टेक्स रीजन बाहर वाला है जहां पर प्रेजेंट होते हैं ओवरियन फॉलिकल्स, और यही ओवरियन फॉलिकल्स हैं जहां से रिलीज होगा ओवा। और जो इनर मेडुला की हम बात कर रहे हैं, तो इनर मेडुला में क्या प्रेजेंट है, इनर मेडुला में प्रेजेंट है ब्लड कैपिलरीज, और ये ब्लड कैपिलरीज के साथ साथ लिम्फेटिक वेसल्स प्रेजेंट है, नर्व्स प्रेजेंट है। तो इनर मेडुला का क्या फंक्शन है, जैसे आपको हमेशा से पता है कि ब्लड जहां पर भी प्रेजेंट होगा तो उसका मेन पर्पस क्या रहेगा, उसका मेन पर्पस रहेगा प्रोवाइडिंग नरिशमेंट। तो यहाँ पर भी इनर मेडुला का जो काम रहता है मेन, वो काम क्या रहता है, टू प्रोवाइड नरिशमेंट। सो दिस वाज अबाउट ओवरी। चलिए अब बात करते हैं, आपको पता है कि ऑल्टरनेट ओवरी एवरी मंथ प्रोड्यूसेस वन ओवम, एक ओवम प्रोड्यूस करती है। सो एक ओवम जो यहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, सो ऑलवेज रिमेंबर दिस ओवम डजंट गो डायरेक्टली इनटू द यूट्रस। जैसे बहुत बार क्वेश्चन आता है द ओवरी रिलीजेस ओवम, सो सबसे पहले कहाँ रिलीज होता है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर और ऑप्शंस दे रखे होते हैं तो उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहले वो यूट्रस में रिलीज होता है या वो फलोपियन ट्यूब में रिलीज होता है या कहाँ रिलीज होता है। तो इस चीज को आप ध्यान रख लीजिए कि ओवरी जब ओवम रिलीज करती है तो सबसे पहले वो रिलीज करेगी अपने बाहर, बाहर मतलब इन द अब्डोमिनल कैविटी। ओवा रिलीज होता है अब्डोमिनल कैविटी में, और अब्डोमिनल कैविटी में से देन इट इज, now once the ova is released in the abdominal cavity, after that it is collected by these finger-like projections which are called the fimbriae. And these fimbriae then after the collection will pass them on into the fallopian tube. Now as you can see there are three parts of the fallopian tube, that is isthmus, ampulla and infundibulum. Before entering from the fimbriae into the infundibulum, it passes through a small pore which is called as the ostia, and through ostia then the ova will enter into the fallopian tube, into the first part which is the infundibulum. From infundibulum it will be passing on to the ampulla region. Now ampulla is the part where the sperm is stored, sorry, where the ovum is stored, and it will then, if in case of fertilization, अगर fertilization होती है तो वो fertilization भी यही होगी। So जो sperm है वो vagina के थ्रू यहाँ से होता हुआ it will be reaching here to the ampulla isthmus junction, और यहाँ ही fertilization होगी। So यहाँ जो ये ampulla region है ये बहुत important है, हम यहाँ पर कह सकते हैं, क्योंकि यही वो region है जहाँ पर क्या होता है, process of fertilization होता है, जहाँ पर की ovum का storage होता है। So ampulla region के बाद आगे पास ऑन होगा टू द isthmus, जैसे मैंने अभी बताया, क्योंकि एम्पुला isthmus जंक्शन पे फर्टिलाइजेशन हो रहा है एक तरह से। सो आगे का जो रीजन होगा वहां पर कौन जाएगा, वहां पर सिर्फ ओवम तब जाएगा अगर इट हैज बीन फर्टिलाइज्ड इनटू द जाइगोट। अगर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो चुका है देन इट विल मूव ऑन इनटू द, इट विल गो एज इन द फॉर्म ऑफ जाइगोट इनटू द isthmus, जाइगोट के अंदर चला जाएगा, जाइगोट के फॉर्म में isthmus में चला जाएगा। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान रखनी है कि जाइगोट के फॉर्म के अंदर ही isthmus से होता हुआ इट इज नॉट गोइंग टू द यूट्रस, क्योंकि जाइगोट विल अंडरगो डिवीजन। जाइगोट एक, आपको पता है आपने हमेशा से यही पढ़ा है कि एक वन सेल्ड स्ट्रक्चर है, एक ऐसा सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर है जो कि आगे किस में डेवलप करेगा, इट विल डेवलप इनटू द एंटायर ऑर्गेनिज्म। सो जितने भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है उनमें सब में ये एक वो सिंगल सेल है जो कि आगे कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में डेवलप करेगा। सो ये जो आगे हम कह रहे हैं जाइगोट की बात कर रहे हैं, तो ये एक सिंगल सेल की फॉर्म में ही आगे यूट्रस में इम्प्लांट नहीं होगा, बल्कि ये
यहाँ से क्रॉस करते हुए फ्लोपियन ट्यूब में से क्रॉस करते करते ही क्या कर जाएगा, इट विल डिवाइड इनटू टू, 1 to 2 सेल्स, 2 to 4, 4 to 6, सॉरी 4 to 8, 8 to 16, आगे डिवाइड करता रहेगा। तो ये जो बीच की स्टेजेस आएंगी ब्लास्टोमियर्स कहते हैं जिनको, और साथ ही साथ फिर एक बीच में मोरुला स्टेजेस आती हैं जो 8 to 16 सेल्ड जो स्टेजेस होती है हम उन्हें मोरुला कहते हैं। एंड देन दे विल बी इम्प्लांटेड इनसाइड द यूट्रस, तब वो यूट्रस में उनका इम्प्लांटेशन होगा। सो ये बात कर ली हमने अभी अबाउट द फलोपियन ट्यूब। तो अब हम डिस्कस कर चुके हैं ओवरी के बारे में, अब हमने डिस्कस किया अबाउट द फलोपियन ट्यूब। तो फलोपियन ट्यूब के तीनों पार्ट्स का हमने डिस्कस किया। तो यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखेंगे कि सबसे वाइडेस्ट जो पार्ट है वो है इस्थमस, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ डिविजन स्टार्ट हो जाएगा तो लार्जर सेल हैज टू मूव ऑन, लार्जर सेल्स हैव टू मूव ऑन। सो इसलिए यहाँ पर क्या है, ये वाइडेस्ट पार्ट है, सबसे वाइड पार्ट है ऑफ द फलोपियन ट्यूब। फलोपियन ट्यूब का एक और बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है जो आप लोगों को पता होना चाहिए, that is it has the presence of ciliated columnar epithelium, ciliated columnar epithelium present है। तो यहां से अगर आप एक कॉन्सेप्चुअल समझने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन, तो वो ये है कि क्या चीज है जो कि ओवा की मूवमेंट में हेल्प कर रहा है इन द फलोपियन ट्यूब। सो जैसे आप लोग फूड कहते हैं कि फूड का मूवमेंट हो रहा है थ्रू पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, तो यहाँ पर क्या चीज है, क्या चीज है जो ओवा को आगे पुश कर रही है या जाइगोट को आगे पुश कर रही है, तो वो क्या चीज है, सिलिएटेड, सिलिया प्रेजेंट है ऑन द सर्फेस, सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम है जो कि पुश करने में आगे हेल्प करता है। तो इसके साथ ही आपके पास आ जाता है कि इसमें हाउ इज इट केप्ट इन द प्लेस, ये किस तरह से अपनी जगह पर एक जगह पर स्टेबल रहता है। तो उसके लिए आपके पास क्या आ जाता है कि इसके साथ अटैच्ड होते हैं लिगामेंट्स, राइट। सो मीजल्स एंड फिनेक्सिक कहते हैं उनको, एंड दे कीप द फलोपियन ट्यूब इन प्लेस। अब इसके साथ ही हमारे पास क्या आ जाता है, नेक्स्ट रीजन में हम बात करेंगे अबाउट द यूट्रस के बारे में बात करते हैं। तो अब ये जो यूट्रस का रीजन है, तो यूट्रस के बारे में जो एनसीईआरटी है बहुत ही क्लियरली आपको कहती है कि यूट्रस की 3 मेजर जो हम डिस्कस करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट कि सबसे पहले तो आपको मैंने बताया कि यूट्रस जो है मदर्स वूम है, इन्वर्टेड पेयर शेप है, इसकी जो सपोर्ट है अगेन ये जो है लिगामेंट्स के साथ सपोर्टेड है। और यूट्रस की जो वॉल है, यूट्रस की वॉल आगे हम बताते हैं कि इट हैज 3 लेयर्स हैं टिश्यूज की, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं, पेरीमीट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। सो ये जो हम डिस्कस करेंगे कि करके सबसे पहले बात करते हैं पेरीमीट्रियम की। तो पेरीमीट्रियम क्या है, पेरीमीट्रियम बाहर की लेयर है, आउटर लेयर है, आउटर लेयर है, और किस चीज की बनी हुई है, ये बनी हुई है अरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की, और साथ ही साथ इसमें प्रेजेंट है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू भी प्रेजेंट है। बाहर की लेयर है और एक्सटर्नल लेयर है, थिन लेयर है, मेम्ब्रेनस है, और साथ ही साथ इसके साथ आ जाती है आपके पास मिडिल लेयर विच इज कॉल्ड मायोमेट्रियम। अब जो ये मिडिल मायोमेट्रियम है, ये क्या है, इसको आप सिंपल से एक ट्रिक से याद रख सकते हैं, दैट इज M3। तो M3 का मतलब क्या हुआ, M3 का मतलब है मायोमेट्रियम इज द मिडिल लेयर मेड अप ऑफ मसल्स। कौन से मसल्स हैं यहाँ पर, स्मूथ मसल्स प्रेजेंट हैं, जो कि चाइल्ड बर्थ दैट इज पैटुरेशन के टाइम में जो कॉन्ट्रैक्शंस होंगी यूट्रस के अंदर, दीज आर कॉज्ड बिकॉज ऑफ द मायोमेट्रियम। सबसे अंदर की लेयर जिसे हम कह रहे हैं एंडोमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम क्या है, एंडोमेट्रियम आपको यहाँ पर दिख रहा है, एक तरह के डिजिटेटेड ये स्ट्रक्चर है, बीच में मेम्ब्रेन है, ग्लैंडुलर है, ग्लैंड प्रेजेंट है यहाँ पर। और साथ ही साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोगों को पता होनी चाहिए कि यही इंटरनल लेयर है विच विल गो द साइक्लिकल चेंजेस। जितने भी साइक्लिकल चेंजेस होते हैं जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के ड्यूरिंग चेंजेस हो रहे हैं, ब्लड वेसल्स बन रहे हैं, टूट रहे हैं, सो वो सारे किस में हो रहे हैं, एंडोमेट्रियल वॉल में हो रहे हैं। सो एंडोमेट्रियल वॉल जो है नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, जब ग्रो करेगा, बीच में एम्ब्रियोनिक ग्रोथ होगी, तो उस टाइम ये एंडोमेट्रियल वॉल ही आगे क्या प्रोवाइड करेगा, नरिशमेंट, क्योंकि इसमें बहुत सारे ब्लड वेसल्स एसोसिएटेड होते हैं। अब इसके साथ ही आ जाता है सर्विक्स। अब सर्विक्स क्या है, जैसे हम माउथ ऑफ यूट्रस कहते हैं, एंड देन इट विल ओपन इनटू द सर्विकल कैनाल। तो सबसे पहले बात करते हैं सर्विक्स की कि सर्विक्स क्या है। सर्विक्स वो पार्ट है जिसे मैंने आपको अभी बताया जो कि ओपनिंग कहते हैं हम यूट्रस की। तो एक चीज यहाँ पर अगेन मैं आपको एक बता रही हूँ, एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कि सर्विक्स शुड हैव वेरी पावरफुल स्फिंक्टर मसल्स होने चाहिए। बहुत पावरफुल स्फिंक्टर मसल्स होते हैं सर्विक्स के अंदर, और वो क्यों होते हैं, बिकॉज द यूट्रस हैज टू होल्ड द एम्ब्रियोनिक, जो फीटस ग्रो कर रहा है उसको लगभग 9 मंथ्स, लगभग 36 वीक्स तक उसको वहीं पर अंदर उसको होल्ड करके रखना है। तो इसी वजह से जो इनके जो स्फिंक्टर मसल्स हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, एंड देन इट विल ओपन इनटू द सर्विकल कैनाल। सर्विकल कैनाल में ओपन हो रहा है, एंड देन द सर्विकल कैनाल विल ओपन इनटू द वजाइना। सर्विकल कैनाल के अंदर सर्विकल फ्लूइड फिल्ड होता है, जिसमें कि प्रेजेंट रहते हैं बहुत सारी सब्सटेंसेस, जैसे कि एंजाइम्स प्रेजेंट है, म्यूकोस प्रेजेंट है, कैल्शियम है, वाटर है।
सो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो।